Go ahead, please. اوکے تھینک یو سو مچ. آئے ہم دعا کریں گے اور ہم سیشن کا آغاز کریں گے. زندہ پاک قدوس خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ سیشن کے لیے خداوند جس کے اندر تو نے اپنا بندہ پاول مارش کو استعمال کیا. خداوند اس سیشن کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتا ہے خداوند جس کے اندر خداوند تو مشن ٹرمنالوجیز خداوند سیکھنے کے لیے ہمیں موقع دے گا. دعا کرتے ہیں کہ بہتر طور پر ہم ان کو سیکھ سکیں اور خداوند اس پیشن کو لے سکیں خداوند جو ہم بائبل مقدس میں خداوند پڑھتے ہیں اور جو تیرے دل کی لالسا ہے کہ خداوند ہم غیر قوموں تک خداوند تیرے کلام کو لے کر جائیں. تیرے قدوس بابرکت و جلالی نام میں دعا مانگتے ہیں, آمین. آئیں ہم دیکھیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ دا ٹاسک ریمیننگ, باقی ماندہ کام یا مشن ٹرمنالوجیز. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مشن کی اصطلاحات جس کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوا ہے اور جب ان کے تعلق سے بات کی جاتی ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ در حقیقت یہ کیا اصطلاح وہ کی جا رہی ہے. اسی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر مسیح کے کلام کو سن لیا ہے یا جن تک مسیح کا کلام پہنچ سکا ہے, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن تک ابھی مسیح کا کلام پہنچنا بڑا ضروری ہے. یہ سلائیڈز ان کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن ہے, آپ اس انفارمیشن کو لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد میں آخر کے اوپر بتاؤں گا کہ کیسے آپ ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ مشن کی جو اصطلاحات ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے جو راف ونٹر کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ جو کنٹری یا ملک اور قوم کے اندر فرق کیا ہے. ملک اور قوم کے اندر فرق کیا ہے. اکثر ہم بائبل کے اندر اصطلاح پڑھتے ہیں قوم, اور ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے ملک, اس کے اندر فرق کیا ہے. ملک در حقیقت ایک جغرافیائی ایک لوکیلٹی ہوتی ہے جس کے اندر جغرافیہ ہوتا ہے, جگہ ہوتی ہے, اور اس ملک کے اندر بے تحاشا قومیں بستی ہیں. دوبارہ سے میں اس بات کو دہرا رہا ہوں, ایک ملک اس کے اندر بہت سی قومیں بستی ہیں اور اس کا ایک جغرافیہ ہوتا ہے, لوکیلٹی ہوتی ہے جس کے اندر وہ جو لوگ ہیں وہ قومیں ہیں وہ بستی ہیں. اور جو قوم ہے, قوم در حقیقت کسی ثقافت کو, کسی رنگ و نسل کو, کسی خاص عقیدے کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نیوزی لینڈ کو دیکھتے ہیں تو نیوزی لینڈ ایک ملک ہے, پاکستان ایک ملک ہے, انڈیا ایک ملک ہے. لیکن اس ملک کے اندر اگر ہم نیوزی لینڈ کے اندر دیکھتے ہیں, نیوزی لینڈ کے اندر انگلش بولنے والے لوگ ہیں, چائنیز لوگ ہیں, انڈین لوگ ہیں, مواری لوگ ہیں, پاکستانی بھی نیوزی لینڈ کے اندر رہتے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کو اگر ہم دیکھیں, پاکستان کے اندر بھی بے تحاشا قومیں رہتی ہیں جن کے اندر پنجابی لوگ ہیں, گوانیس ہیں, پختون ہیں, بلوچی ہیں, سرائکی ہیں, اور انڈیا کے اندر بھی تامل ہیں, ایڈواسی ہیں, انگلش بولنے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ملک کے اندر بہت سی قومیں جو سی ہیں وہ بستی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا, ہم بولتے ہیں ریچڈ لوگ اور ان ریچڈ یا لیسٹ ریچڈ پیپل. ریچڈ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ ریچڈ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم رساں لوگ کہتے ہیں. رساں لوگ وہ ہیں جن تک خدا کا کلام پہنچ گیا ہے. دوبارہ سے, ریچڈ یا رساں لوگ وہ ہیں جن تک خدا کا کلام پہنچ گیا ہے, یا جن کے درمیان کوئی خود کفیل کلیسیا قائم ہے. وائبل چرچ وہاں پر موجود ہے, اس کو ہم ریچ لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگ جن کے گھروں کے پاس یا جن کے علاقوں کے اندر چرچز موجود ہیں, ہم لوگ ریچ لوگ ہیں. لیکن بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کے اندر ابھی تک بھی جو چرچ ہے وہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر کلیسیا نہیں ہے, جہاں پر ابھی تک خدا کا کلام نہیں پہنچا, ان کو کم رساں یا نارساں یا انگلش میں لیسٹ ریچ پیپل گروپ وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ان میں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے نیوزی لینڈ کے اندر یہ جن کے اوپر صلیب کا نشان بنایا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کلام پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے نیوزی لینڈ کے اندر انگلش سپیکنگ لوگ وہ ریچڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. مواری لوگ ریچڈ لوگ ہیں. شاید اور اسی طرح پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پنجابی لوگ یا گوانیس لوگ جو ان سے ریچ اینڈ تک خدا کا کلام پہنچ گیا ہے. اسی طرح انڈیا کے اندر تامل لوگ یا انگلش سپیکنگ بولنے والے لوگ ان تک کلام پہنچ گئے. لیکن
کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جن تک ابھی خدا کا کلام نہیں پہنچا, اور جن تک خدا کا کلام نہیں پہنچا ان کو کیا بولتے ہیں, لیسٹ ریچ یا ان ریچ پیپل, جن تک خدا کا کلام ابھی تک نہیں پہنچا ہے. اس کے بعد ابھی تک میں نے آپ کو 4 اصطلاحات بتائی ہیں. پہلی بات, ملک کی تعریف کیا ہے, قوم کی تعریف کیا ہے, ریچ لوگ یا رساں لوگ کون سے ہیں, ان ریچ یا لیسٹ ریچ, نہ رساں یا کم رساں لوگ وہ کون سے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو اگلی ہے, یہ بڑی خاص بات ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں ریگولر مشن اور فرنٹیئر مشن. اب بات یہ ہے کہ ریگولر مشن کون سا ہے اور فرنٹیئر مشن کون سا ہے. ریگولر مشن یہ ہے کہ جب میں جن کے پاس چرچ ہے, ہم اس جگہ پر جا رہے ہیں جدھر آگے بھی چرچ ہے. مثال کے طور پر ایک امریکہ سے خدا کا خادم ہمارے درمیان آتا ہے, تو یہ فرنٹیئر مشن نہیں ہے, یہ ریگولر مشن ہے. اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ وہ ہمارے درمیان آ رہا ہے لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی جو چرچ ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے. ٹھیک ہے, جب چرچ ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ایسی کلیسیا میں آ رہا ہے, ایسے لوگوں کے درمیان آ رہا ہے جو کہ ریچڈ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریگولر مشنز ہیں. آسان لفظوں میں دوبارہ سے بتاتا ہوں, ریگولر مشنز یہ ہے کہ جب آپ ریچ لوگوں میں جاتے ہیں جن تک خدا کا کلام پہلے سے ہی پہنچ گیا ہے, جن تک خدا کا جو کلیسیا پہلے سے ہی قائم ہے, ان کو کیا کہتے ہیں, ریگولر مشنز کہتے ہیں. لیکن ایک جو اصطلاح ہم نے بہت زیادہ سنی ہے اور ہم اکثر سنتے ہیں, وہ اصطلاح ہے فرنٹیئر مشن. فرنٹیئر مشن, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرنٹیئر مشنز کیا ہے. فرنٹیئر مشنز یہ ہے کہ وہ علاقے جدھر ابھی تک خدا کا کلام نہیں پہنچا, جب آپ ادھر جا کر خدا کا کلام پہنچاتے ہیں تو ان کو, اس مشن کو کیا کہتے ہیں, فرنٹیئر مشن. یا جب آپ ان ریچڈ لوگوں کے اندر یا لیسٹ ریچڈ لوگوں کے درمیان خدمت کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فرنٹیئر مشن. ٹھیک ہے, ابھی آپ مائک اوپن کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں, یہ ہم اس کی تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے اور آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ریگولر مشن ہے یا فرنٹیئر مشن ہے. ذرا بتائیں, مائک اپنے اوپن کریں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے. نیوزی لینڈ کے لوگ, ریچڈ لوگ, پاکستان کے پنجابی لوگوں کے اندر جن تک خدا کا کلام پہنچ گیا ان تک پہنچ رہے ہیں, یہ ریگولر مشن ہے کہ فرنٹیئر مشن ہے؟ مائک کھولیں اپنے, کھل کے بتائیں. یہ ریگولر مشن ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب دیکھیں, اب جب نیوزی لینڈ کے ریچڈ لوگ, رساں لوگ, پاکستان کے نا رساں لوگوں تک پہنچتے ہیں, مثال ہم دے رہے ہیں, یہ کون سا مشن ہوگا, ریگولر مشن کے فرنٹیئر مشن؟ فرنٹیئر مشن. ویری نائس. اوکے, اس کے بعد دیکھیں, اگر نیوزی لینڈ کے اندر ہی ایک ریچڈ گروپ, رساں گروپ, دوسرے رساں گروپ تک جاتا ہے تو وہ کون سا مشن ہوگا, ریگولر کے فرنٹیئر؟ ریگولر مشن, کیونکہ وہ رساں لوگ ہی دوسرے رساں لوگوں تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سلیب سے ہم نے یہ بتایا کہ ادھر کلیسیا قائم ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری جو قوم جن کے پاس جا رہے ہیں ادھر بھی کلیسیا جو ہے وہ قائم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ذرا دیکھیں ایک اور اصطلاح, اس کو کہا جاتا ہے E1, E2, E3. بشارت نمبر 1, بشارت نمبر 2, بشارت نمبر 3. بشارت نمبر 1 کیا ہے؟ بشارت نمبر 1 یہ ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ رکاوٹوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. مثال کے طور پہ اگر میں سرگودا چرچ کے اندر یا فیصل آباد چرچ کے اندر آتا ہوں تو اس کے اندر کیا ہے, مجھے کوئی خاص رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. صرف ایک رکاوٹ ہے کہ مجھے سفر کر کے آپ کے پاس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو شاید ایک رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے لیکن زیادہ رکاوٹیں نہیں ہیں. لیکن E2 کے اندر کیا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ رکاوٹ کو عبور کرنا پڑتا ہے, شاید 2 رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑے گا. اس میں کیا ہے, رکاوٹ کیا ہے کہ شاید میں ایسے کر لیتے ہیں کہ میں سندھ کے اندر جا رہا ہوں اور سندھ کے اندر ان کی ثقافت مختلف ہے. پہلی بات ان کی ثقافت مختلف ہے, دوسری بات ان کی زبان میرے سے فرق ہے, تو مجھے 2 رکاوٹوں کو عبور کر کے جانا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں جب ایک سے زیادہ
रुकावटों को अबूर करना पड़े उसको कहते हैं बिशारत नंबर 2 या एवेंजलिज्म 2 इंग्लिश के अंदर E2। एक और इस्तिलाह है वो है E3 जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अब वो क्या है? मिसाल के तौर पे हमारा एक अफ्रीका का भाई पाकिस्तान में बशारत के लिए आ रहा है, उसको क्या क्या रुकावटों का सामना करना पड़ेगा बताएं जरा। सफर की रुकावट, सफर की रुकावट, ज़बान की रुकावट और दुकान की और सफर की जी ठीक है। और उसके बाद उसको लिबास का मसला होगा, जी ठीक है। और उसको पता नहीं होगा कि उसने रहना क्या है। और एक और बड़ी रुकावट जो उनसे बाहर से लोग आते हैं उनको बहुत ज्यादा रुकावट होती है, या जब हम भी जाते हैं खाने का बड़ा मसला होता है। ठीक है, खाना हम एक दूसरे का इतनी आसानी से नहीं खा सकते। इसका मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि इसके अंदर E3 के अंदर या बशारत नंबर 3 के अंदर आपको 2 से ज्यादा रुकावटों को अबूर करके आप मिशन के काम पर या बशारत के काम पर जाते हैं। मैंने 3 आपको बशारत की इकसाम बताई। पहली ये है एक रुकावट को अबूर करना, E2 ये है एक से ज्यादा रुकावटों को अबूर करना, और E3 ये है जब आपको बहुत सी रुकावटों को अबूर करके आपको खुदा का कलाम दूसरों तक लेकर जाना पड़ता है। और जरा इसकी अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, मशक करेंगे। ठीक है, आपने मुझे ये बताना है पहले नंबर पे कि अगर पाकिस्तान के अंदर पंजाबी लोग अपने लोगों के अंदर, पंजाबियों के अंदर जाते हैं तो ये रेगुलर मिशन है कि ये फ्रंटियर मिशन है? रेगुलर मिशन है। और अब ये बताएं कि ये E1 है, E2 है या E3 है? बशारत नंबर 1 E1। क्यों E1 है? क्योंकि उनको ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, क्योंकि हमारा लिबास एक है, हमारी बोलचाल एक है, और हमें सिर्फ एक मुश्किल का शायद सामना करना पड़ेगा, वो भी नहीं कि हमें सफर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी मिसाल हम देखेंगे, ये E1 है, वेरी गुड। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर न्यूजीलैंड के लोग रीच्ड लोग पाकिस्तान के रीच्ड लोगों के पास आते हैं तो ये E1 है, E2 है या E3 है? E3। वजह क्या है E3 की? क्योंकि उन्हें एक बहुत सा मसला, सफर का मसला, बिल्कुल, उनको बहुत सी, वेरी नाइस, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इसलिए जब वो न्यूजीलैंड से पाकिस्तान में पंजाब में आएंगे तो ये E3 है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये रेगुलर मिशन है कि फ्रंटियर मिशन है? फ्रंटियर मिशन। रेगुलर मिशन है, क्योंकि दोनों जगहों पर कलीसियाएं कायम हैं। जब वो पंजाब के अंदर आ रहे हैं तो चर्च कायम है, तो ये रेगुलर मिशन है। वेरी गुड। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं। अगर न्यूजीलैंड से हमारे अगर पख्तून के पास आते हैं तो ये कौन सा होगा? अगर हम कहते हैं कि उधर चर्च नहीं अभी बना हुआ, ये फ्रंटियर मिशन है। और जरा बताएं कि ये E1 होगा, E2 है या E3 है? E3। वेरी नाइस। ओके, उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर हम भी पंजाबी लोग, हम अपने ऐसे कह लेते हैं हम मारवाड़ी लोगों के दरमियान जा रहे हैं और उधर चर्च नहीं है, तो ये रेगुलर मिशन है क्या फ्रंटियर मिशन है? फ्रंटियर मिशन है। और ये E1, E2 या E3 है? E2 है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये जब ये जो एक ये वाला है, ये बड़ा कई दफा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूं कि आपने इसका बेहतरीन जवाब दिया। ये E2 एवेंजलिज्म 2 है। ओके, आए जरा अब इस बात को देखें, ये बड़ी सीखने वाली बात है। अब देखेंगे हम कि सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इतना ज्यादा, आपके ज़हनों में सवाल ये पैदा होगा कि जब इतना ज्यादा मसीह का काम हो रहा है तो क्यों इतना ज्यादा जो मतवाजन नहीं है, क्यों इतना ज्यादा लोगों ने अभी तक खुदा का कलाम नहीं सुना? वजह क्या है? वजह यह है कि बहुत ज्यादा लोग वो उन लोगों तक जाना पसंद करते हैं जिन तक पहले से ही कलाम पहुंचा हुआ है। वो उन लोगों के अंदर जाना चाहते हैं। उन लोगों के पास हम जाने से घबराते हैं जिन तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। और यही वजह है क्योंकि हम बहुत ज्यादा रेगुलर मिशन कर रहे हैं और फ्रंटियर, जरा सुने जरा ध्यान के साथ, माइक बंद करें।
हम क्योंकि बहुत ज्यादा रेगुलर मिशन कर रहे हैं और फ्रंटियर मिशन कम कर रहे हैं, इसलिए जब रेगुलर मिशन ज्यादा होगा और फ्रंटियर मिशन कम होगा तो इनके अंदर तवाज़ुन नहीं होगा, और इसलिए बहुत से लोगों ने आज तक मसीह का कलाम वो नहीं सुना। और जरा देखेंगे अगले आगे आगे हम देखेंगे कि कितने लोगों ने अभी तक मसीह का कलाम नहीं सुना। इसके लिए जरा नोट करें जरा, दुनिया के अंदर तकरीबन अभी तक 2.8 बिलियन लोग, 2 अरब 80 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मसीह का कलाम नहीं सुना। ठीक है, और इनके अंदर जरा ध्यान के साथ सुने, दुनिया के अंदर 6,900 कौमें ऐसी हैं जो लीस्ट रीच हैं जिन्होंने अभी तक मसीह का कलाम नहीं सुना। दोबारा से दोहरा रहा हूं, दुनिया के अंदर 6,900 कौमें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक मसीह का कलाम नहीं सुना। उनके अंदर हम देखेंगे कि आपको ये चार्ट मिल सकता है जिनके अंदर हिंदू हमारे भाई बहन है, उनके अंदर तकरीबन 935 मिलियन लोग ऐसे हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मुस्लिम तकरीबन 2821 कौमें ऐसी हैं, 1.3 बिलियन लोग ऐसे हैं। और दूसरे मज़ाहिब बुद्धिज्म है इसके अंदर, और दूसरे नॉन रिलीजियस जो किसी खुदा को नहीं मानते, तकरीबन ये सारे मिलाकर 2.8 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने मसीह को कलाम को नहीं सुना, और यहाँ पर कोई भी चर्च नहीं है। और 6,900 कौमें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक मसीह के कलाम को नहीं सुना। अब जरा देखें क्यों ऐसा है, क्यों अभी तक इतने लोगों ने नहीं सुना खुदा का कलाम। उसकी बड़ी वजह क्या है? 80% मिशनरीज, 80% लोग उन लोगों में काम करना पसंद करते हैं जिनके अंदर पहले ही चर्च कायम है। 80% लोग उन लोगों में जाना पसंद करते हैं जिनके अंदर पहले ही चर्च कायम है, और 20% लोग ऐसे हैं जो फ्रंटियर मिशन के अंदर या उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जिधर अभी तक कलीसिया कायम नहीं हुई। और यही वजह है क्योंकि 80% लोग तो सिर्फ रीच्ड लोगों के अंदर ही काम कर रहे हैं, उन लोगों में काम कर रहे हैं जिनके अंदर चर्च है। और इसलिए वारसपुरा में, मैं एक इलाके की बात नहीं कर रहा, वारसपुरा, योहानाबाद और दूसरे हमारे इलाके, उनके अंदर अगर आप देखें तो 250 चर्च हुए एक जगह के अंदर है। वजह क्या है? क्योंकि हमारा फोकस ये है कि हम ज्यादा उन जगहों पर काम करना चाहते हैं जिधर पहले ही लोगों ने निजात पाई है, ये चर्च मौजूद है। और 20% लोग सिर्फ ऐसी जगहों पर काम करना चाहते हैं जिधर चर्च मौजूद नहीं है। और जरा देखें 9,700 कौमें या ग्रुप ऐसे हैं जिन्हों तक मसीह का कलाम पहुंच गया है, और 6,900 कौमें ऐसी हैं जिन तक अभी मसीह का कलाम नहीं पहुंचा। मैंने आपको जैसे पहले भी कौमों की और आपको मुल्कों की तारीफ में फर्क किया। अब जरा देखें टोटल कौमें कितनी दुनिया में बसती हैं? 16,600 कौमें पूरी दुनिया के अंदर बसती हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 395 कौमें बसती हैं, और उनमें से 250 कौमें हैं जिन तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब यह है कि 9,700 कौमों तक खुदा का कलाम पहुंच गया, और 6,900 तकरीबन 7,000 कौमें ऐसी हैं जिन तक मसीह का कलाम पहुंचने की जरूरत है। वजह क्या है? वजह यह है, यह गुड का निशान यह है कि हमारी तरजीहात ज्यादा उन लोगों की तरफ है जो लोगों तक पहले ही मसीह का कलाम पहुंच गया, और हमारी तरजीह कम उन लोगों की तरफ है जिन तक अभी तक मसीह का कलाम या कलीसिया कायम नहीं हुई। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे एक और जबरदस्त बात कि अब जो यूरोप है वो भी दर हकीकत दोबारा से वहां पर रसाई खुदा के कलाम को पहुंचाने की जरूरत है। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं 1970 के अंदर खुदाउन के खादम बिली ग्राम ने कोरिया के अंदर और सिंगापुर के अंदर जब वो कॉन्फ्रेंस में थे तो खुदाउन ने कहा कि खुदाउन एशिया को आने वाले 40 सालों के अंदर अंताकिया की कलीसिया के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और यहां से मिशनरीज को वो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर लेकर जाएगा। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज बहुत से एशिया से लोग वो जा रहे हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो वहां पर जाकर उन लोगों के दरमियान जिनसे मिशन का आगाज हुआ था
मसीहत का आगाज हुआ था दोबारा उन तक जा रहे हैं और मसीह का कलाम पहुंचा रहे हैं। और हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने खादम डॉक्टर चार्ल्स के लिए, जिनको खुदावंद ने फिनलैंड के लिए भेजा हुआ है, अमेरिका के लिए भेजा हुआ है और खुदावंद यूरोप के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। ये उसी जो खुदावंद के खादम की ने प्रोफेसी की थी उसकी तकमील है कि एशिया से हमारे खादमदीन जा रहे हैं और खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यूरोप एक दफा फिर से मिशन की जगह है, वहां पर खुदा का कलाम दोबारा से पहुंचाने की जरूरत है। और उसके बाद जो उनसे गरीब ममालक हैं, जो गरीब जिधर पासमानदगी है, उधर हम जाकर मसीह का कलाम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब कोई गरीब होता है, पसमानदा होता है, तो वो आपकी बात सुनने के लिए वो हाजिर होता है। ये चैलेंज है हमारे लिए, हम उन तक जा सकते हैं और मसीह का कलाम पहुंचा सकते हैं। और जब वो मसीह का कलाम सुनेंगे तो जरूर वो उसके ऊपर ईमान लेकर आएंगे। इसके बाद ये जरा देखें, जो लीस्ट रीच पीपल ग्रुप हैं दुनिया के अंदर, वो बहुत ज्यादा पसमानदा मुल्क भी हैं। और देखें, इसलिए जो बहुत ज्यादा गरीब मुल्क हैं, आप देख सकते हैं कि जितने भी गरीब मुल्क हैं उनके अंदर अभी तक कलाम का किस्सा, कलाम नहीं पहुंचा। और हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि जब खुदा का कलाम कहीं पर पहुंच जाता है, खुदा का कलाम वहां पर खुशहाली लेकर आता है, गुर्बत चली जाती है और जिंदगियों के अंदर खुदा की बरकत वो जारी होना शुरू हो जाती है। इसलिए आप इस बात को चैलेंज लेके जब खुदा का कलाम हम इन लोगों के दरमियान लेकर जाएंगे तो खुदावंद उनकी हालतों को तब्दील करेगा और उनके खलात को तब्दील करेगा। उसके बाद हमारे लिए एक और चैलेंज क्या है? वर्ल्ड वाइड माइग्रेशंस। अब देखें, बड़ी शानदार बात यह है कि कई दफा हम ये कहते हैं कि हम बाहर कैसे जाएं, हम बाहर जा नहीं सकते। बाहर कई दफा हम बाहर ऐसे इलाकों में नहीं जा सकते जहां पर हम खुदावंद का कलाम पहुंचा सके। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी हिजरतें हुई हैं कि बहुत से लोग अब जो दूसरे मुमालिक के थे वो आपके घरों के पास, आपके पास आ गए हैं। आपको दूसरे किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उनको अपने ही मुल्क तक, उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं और खुदा का कलाम पहुंचा सकते हैं। आपको उनके मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है, खुदा ने खुद उनको आपके दरवाजे के ऊपर भेजा है ताकि आप उन तक खुदा के कलाम को लेकर जा सकें। एक बड़ी ही जबरदस्त बात मैंने एक सिंगापुरियन मिशनरी से सुनी और उसने बताया कि हम जो से बाहर से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हम ये करते हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको खुदा का कलाम सिखाते हैं। उन्हीं के अंदर एक नौजवान था जिसको हमने मसीह का कलाम सुनाया और उसने अपनी जिंदगी मसीह को दी। 2 महीने के बाद उसको चाइना से फोन आया कि और उन्होंने कहा कि तेरी जो मंगेतर है उसका एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने कहा कि वो मर गई है। उसने क्या किया, उसने फौरन से अपने बैग को पैक किया और वो वापस अपने मुल्क में चला गया। और जब वो अपने मुल्क में चला गया तो ये खुदाउंद की खादमा कहती है हम बहुत ज्यादा परेशान हुए कि अभी ये बहुत शीरहार ईमानदारी था और इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये छोड़ देगा और अब ये मसीही नहीं रहेगा। कहते हैं 6 महीने के बाद हमें एक कॉल आई और हमारे साथ फोन पे वही लड़का था। हमने उसको कहा कि बता तेरा क्या हाल है। उसने कहा मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उन्होंने कहा हम तो बड़े घबराए हुए थे कि तूने तो शायद मसीह को छोड़ दिया हो क्योंकि तेरे साथ बड़े मुश्किल हालात वो पेश आए थे। उसने कहा मैंने मसीह को नहीं छोड़ा, बल्कि मैं खुश इस बात के लिए हूं कि मेरा बाप जो के मेरा बाप जो के मोंक था, जो के एक मजहबी लीडर था, मैं उसके ताल्लुक से बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने उसको मसीह के कलाम के ताल्लुक से बताया और मैं ये बताना चाहता हूं कि अब मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा खानदान हमने मसीह को कबूल कर लिया है। और उसने कहा कि यही खूबसूरत बात है कि जो लोग आपके पास, आपके मुल्क में आए हैं, जरूर उनको निजात की गवाही दे। शायद आपके लिए उनके इलाका जात के अंदर, उनके ममालिक में जाकर खिदमत करना मुश्किल हो, लेकिन खुदावंद आपके लिए ये मुमकिन बना रहा है कि वो आपके दरवाजे पर आए हैं और आप उनको मसीह का कलाम वो सुना सकें। उसके बाद ये एलिसन पोंग अपनी इस स्टोरी के अंदर बताती है और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको छोड़कर आगे आएंगे
ताकि हम एक वीडियो भी है जो हमने एंड के ऊपर देखनी है। अच्छा, अब एक और जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वो है ट्रेडिशनल मिशनरीज, रवायती मिशनरीज। दो किस्म के मिशनरीज होते हैं। दो किस्म के मिशनरीज में एक है लॉन्ग टर्म मिशनरी, एक है शॉर्ट टर्म मिशनरी। लॉन्ग टर्म या जिनको कहते हैं कलील मुद्दत के लिए या एक जो लंबे अरसे के लिए मिशनरीज आते हैं वो कौन से मिशनरीज हैं, और छोटे अरसे के लिए जो मिशनरीज हैं वो कौन से हैं। शॉर्ट टर्म मिशनरीज वो होते हैं जो सिर्फ 6 महीने या इससे कम के लिए आते, खिदमत करते और वापस चले जाते हैं। दोबारा से, शॉर्ट टर्म मिशनरीज या शॉर्ट टर्म खिदमत गुजार वो है जो 6 महीने या इससे कम अरसे के लिए आते और वापस चले जाते हैं। उसके अंदर मिसाल के तौर पे वो आते हैं, बशारती इबादत करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को तरबियत देते हैं, लीडर्स को तरबियत देते हैं और इसके बाद वो वापस चले जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मिशनरीज कौन से हैं? जो कि 2 साल या इससे ज्यादा अरसे के लिए आते हैं। और हम खुदा उनकी जो गुजारी करते हैं कि बहुत से ऐसे मिशनरीज पाकिस्तान के अंदर आए जिन्होंने लंबी देर के लिए आए और उनके वसीला से खुदावंद ने एक गैर मामूली बेदारी को पाकिस्तान में भेजा, जिनके अंदर हम देख सकते हैं कि ब्रदर मार्टिन को हम देख सकते हैं, ब्रदर यंगसन को हम देख सकते हैं जिनके नाम के ऊपर मार्टिनापुर है, जिनके नाम के ऊपर यंगसनाबाद है, और उसके बाद हम देख सकते हैं जॉन हाइट को जिसको दुआगो हाइट कहा जाता है। ये वो मिशनरीज हैं जिन्होंने लंबे अरसे के लिए आए। लेकिन इनके साथ साथ हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म मिशनरीज जो कि जिनको हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में आए और उन्होंने मसीह का कलाम सुनाया और मसीह ने उनको अजीब तरीके से इस्तेमाल किया, हम उनको भी देखते हैं कि वो भी जब आते हैं तो मसीह उनके वसीला से गैर मामूली तब्दीली को लेकर आता है। लेकिन बिल टेलर क्या कहता है? बिल टेलर ये कहता है कि हमें ये नहीं करना कि हम इन दोनों में से कहें कि लॉन्ग टर्म मिशनरीज अच्छे हैं और शॉर्ट टर्म मिशनरीज जो हैं वो अच्छे नहीं है। वो कहता है कि ये दोनों मिशनरीज दर हकीकत हमें इनकी जरूरत है। वजह क्या है? कई दफा क्या होता है जब लॉन्ग टर्म मिशनरीज वो काम कर करके थक जाते हैं तो ये शॉर्ट टर्म मिशनरीज वो आते, वो बिदारी की एक नई लहर को लेकर आते हैं और पाक रूह के मसा के वसीला से खुदावंद दोबारा से उस काम को उठा खड़ा करता है जो कि शायद थोड़ा सा थक गया था या कमजोर पड़ गया था। इसलिए ये इसी तरह है जैसे कि जहाज अपने दोनों परों के साथ उड़ता है और ये एक पर के साथ नहीं उड़ सकता। इसलिए हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मिशनरीज की वो क्या है? जरूरत है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज, खुदावंद बहुत सी ऐसी मिनिस्ट्रीज है जिनको इस्तेमाल कर रहा है। कई दफा हम होता है कि हम जब एक मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं तो हम दूसरी मिनिस्ट्री को कहते हैं वो गलत कर रहे हैं। नहीं, खुदावंद डिफरेंट तरीकों से खुदावंद ये मिनिस्ट्रियों को मखसूस खिदमात को इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे इसमें रेडियो की मिनिस्ट्री है, इसमें टेलीविजन मिनिस्ट्री है, इसमें लीडरशिप मिनिस्ट्री है, इसमें कन्वेंशनों की मिनिस्ट्री है, इसके अंदर पासवानी खिदमत है, इसके अंदर मुबशराना खिदमत है। खुदावंद ये सारी खुसूसी खिदमात को इस्तेमाल करके खुदावंद हमको उन लोगों तक लेकर जाना चाहता है जिन्होंने अभी तक मसीह का कलाम नहीं सुना। शायद हम कई दफा कहते हैं कि इतने ज्यादा टेलीविजन हो गए हैं, इनकी क्या जरूरत है। लेकिन एक बात जरा सोचे कि कितना शानदार बात है कि जिधर हम नहीं जा सकते हमेशा, और मेरी और डॉक्टर साहब की हमेशा ये बात होती है, हम ये कहते हैं कि टेलीविजन मिनिस्ट्री कितनी जबरदस्त मिनिस्ट्री है कि जिधर हम नहीं जा सकते उधर टेलीविजन जरूर जाता है, रेडियो जरूर जाता है। और इसका मतलब क्या है कि खुदावंद इन टेलीविजन रेडियो मिनिस्ट्री को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो रीच ग्रुप जिन्होंने अभी तक खुदा का कलाम नहीं सुना वो इन खिदमात के वसीला से खुदा के कलाम को सुन सके। इसलिए हम कोई भी जो इस तरह की मखसूस खिदमात हैं उनको हमें रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहा है कम रसा या ना रसा लोगों के लिए। इसके बाद एक और बड़ी जबरदस्त बात, नॉन ट्रेडिशनल गैर रवायती मिशनरीज। पहले हैं रवायती मिशनरीज, ये वो मिशनरीज हैं रवायती मिशनरीज जो बता के जाते हैं कि हम खुदा का कलाम सुनाने वाले हैं, लेकिन अब कई जगहों के ऊपर हम नहीं जा सकते और खुदा के कलाम को हम नहीं लेकर जा सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप कारोबार करते हैं और कारोबार के नीचे, कारोबार के साथ साथ
आप दोस्तियां बनाते हैं, रफाकत रखते हैं, ताकि आप उस जगह पर उस मुल्क में रहकर खुदा के कलाम को पहुंचा सके। और आने वाले दिनों के अंदर बाइवोकेशनल दोहरी जोन सी ये खिदमत है, ये बहुत ज्यादा अहम होती चली जा रही है, क्योंकि कई मुमालिक के अंदर अंजील के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। और इसलिए ये हमारी मदद करता है ताकि हम उन मुमालिक में जाकर खुदा का कलाम पहुंचा सके, जिसके अंदर वो शायद हमें बशारत की इजाजत तो नहीं देंगे, लेकिन कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जो आपको कारोबार से रोके। तो इसलिए जब आप कारोबार खोलेंगे तो उसके साथ साथ आप खुदा का कलाम भी सीख सकते हैं। और जब मैंने 3-4 साल पहले मैंने इसके ऊपर तालीम हासिल करने के लिए मैं बाहर गया, तो मेरा उस्ताद मोहतरम था, उनका दार हकीकत एक रेस्टोरेंट है एक मुल्क के अंदर। और वो क्या है कि रेस्टोरेंट के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो लोगों को मसीह के ताल्लुक से बताते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उनके रेस्टोरेंट के अंदर भी ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया है, और अब वहां पर ही वो काम कर रहे हैं और वहां पर ही अपनी निजात की गवाही दूसरों तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद जो ग्राहम बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि शायद हम कई दफा कहते हैं कि मुझे खुदावंद वसाइल दे कि मैं उधर जाऊं दूसरे मुल्क में जाऊं, लेकिन शायद आपके घर के साथ आपका हमसाया है और उसने अभी तक मसीह यीशु को कबूल नहीं किया। और जब हम तख्ते अदालत के सामने खुदावंद के सामने हाजिर होंगे तो वही हमारा हमसाया वो ये कहेगा कि ये मेरे साथ था और इसने मुझे मसीह का कलाम नहीं सुनाया, मसीह का कलाम नहीं पहुंचाया। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका ये है कि हम उस हमसाए को जिसने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, हम उस तक मसीह के कलाम को लेकर जाएं। और फिर खुदावंद, जब हम ऐसा करेंगे तो फिर खुदावंद गैर मामूली काम हमारी जिंदगियों के अंदर से करेगा। और फिर ये 2.8 बिलियन लोग जिन्होंने अभी तक मसीह के कलाम को नहीं सुना, वो मसीह के कलाम को कबूल करेंगे और मसीह के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेंगे। और फिर ये 6,900 कौमें भी मसीह के पास आएंगी और एक बड़ी बेदारी आएगी। अब मैं जिस तरफ जा रहा हूं, हम एक छोटी सी वीडियो, थोड़ी सी आपको वक्त लगेगा, इतनी छोटी भी नहीं है, ये वीडियो देखें। ये औरत, इसने अपनी जवानी के अंदर एक अफ्रीका के अंदर खिदमत का आगाज किया और आज जरा देखिएगा कि खुदावंद उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। मत जाइएगा, ये वीडियो देखें। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने इस वीडियो को देखा, इसने मुकम्मल तौर पर मेरी सोच को तब्दील कर दिया। और मैंने कहा कि अगर एक औरत, एक लड़की वो इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आ सकती है, तो हम तो बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ सकते हैं। सो अब हम बढ़ेंगे और इस वीडियो को आप देखें और इस वीडियो को हम देखेंगे। ओके, अगर आपको आवाज ठीक आ रही होगी तो मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं।
1967 में मैं पापा न्यू गिनी में आई और इंडियाना वेलप्रेसो की छोटी सी ज़रई आबादी में जवान होते हुए 5 साल की उम्र ही से मैं मिशनरी बनने का ख्वाब देख रही थी। और मैं यहाँ थी और तकरीबन 700 से ज़ायद ज़ुबानें इस जजीरे पर बोली जाती थी जो ऑस्ट्रेलिया के शुमाल में है। मैं और मेरी साथी ये फैसला कर रहे थे कि इन 700 ज़ुबानों में से किस पर हम अपने काम का आगाज करें। खैर, हमारी इंतजामिया चाहती थी कि हम पहले दरिया सीपिक के इलाका पर तवज्जो दें क्योंकि यहाँ मिशनरी काम बहुत कम किया जा रहा था और वो हमें सीपिक एवं कबीले में जाने के लिए कह रहे थे जो कि दरिया सीपिक से तकरीबन 500 मील के फासले पर था, जिसका नाम हाउना था क्योंकि हमारी इंतजामिया नहीं चाहती थी कि 2 अकेली लड़कियां सबसे ज्यादा हवाई पट्टी से कश्ती के जरिए एक दिन से ज्यादा मसाफत पर हों। लेकिन ये एक तरह से निशानदेही करती है क्योंकि वहाँ पर दरिया के साथ सिर्फ कुछ ही हवाई पट्टियां मौजूद थी और इनमें से एक एम्बोंटी के नाम से जानी जाती थी। और मुझे याद है कि हम दोनों सेस्ना 206 के उस छोटे से जहाज पर बैठे थे और हमारे पायलट ने पापा न्यू गिनी के जंगलों के ऊपर से उड़ाते हुए एम्बोंटी की एक छोटी सब्ज हवाई पट्टी पर उतारा। यहाँ से हमें इस छोटे से गांव हाउना तक पहुँचने के लिए तकरीबन 110 मील और आगे जाना था जो कि बड़े दरिया से तकरीबन 4 मील के फासले पर वाक़ था। मुझे याद है कि हम इसी जगह से इस गांव में दाखिल हुए थे और हमने अपनी कश्ती की मोटर बंद की। हमारी कश्ती पानी में तैर रही थी। दरिया के दोनों इतराफ मकान थे जिनकी छतें और दीवारें दरख्तों की छालों से बनी हुई थी और कई लोग छोटी कश्तियों में बैठे हुए हमें मिलने आए और उन कश्तियों ने हमें घेर लिया और वो सब आदमी कश्तियों में खड़े होकर हमें देख रहे थे और उन्होंने अपनी कमर के गिर्द मुख्तलिफ किस्म की बेलें लिपेटी हुई थी। और जब हम वहाँ अपनी कश्ती में बैठे हुए थे तो उन लोगों ने हमसे कुछ कहा। मैं नहीं जानती कि उन्होंने क्या कहा होगा क्योंकि मैंने वो जुबान पहली मर्तबा सुनी थी। ऐन मुमकिन है वो ये कह रहे हो, तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम क्या कर रहे हो। मैं नहीं जानती उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैंने उन आदमियों को टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया और उन सब लोगों की तरफ देखते हुए मैंने कहा कि हम दोनों यहाँ आकर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। खैर, जब मैं इस बारे में सोचती हूँ कि मैंने क्या कहा था तो मुझे एहसास होता है कि वो बहुत अच्छा आगाज नहीं था। मैंने उन लोगों से कहा कि हम दोनों आकर तुम्हारी जुबान सीखना चाहते हैं और फिर वहाँ से एक नाकाबिले बयान कहानी के मंजरे आम पर आने का आगाज हुआ जहाँ खुदा उन्हीं की जुबान और सकाफत में उनसे मिलने को आया था। पापा न्यू गिनी में इस टापू पर 700 से भी जायद जुबानें बोली जाती हैं जिनके मजीद हजारों लहजे हैं। बस ये तमाम जुबानें तहरीरी नहीं है, यानी उनकी जुबानों के कोई हरूफ तहजी नहीं है। उनके पास अदब नहीं है और ना ही उनकी जुबान में लिखा हुआ खुदा के कलाम का कोई हिस्सा मौजूद था। और चूंकि हमें माहिर बशरियात और माहिर लसानियात के तौर पर तरबियत दी गई थी और ये कि किसी जुबान की साख्त और तरकीब को समझकर उस जुबान के हरूफ तहजी को तश्कील दे सके। दरअसल हमारा पहला स्कूल 6 माह का था जिसमें जुबानों के हरूफ तहजी बनाना, ग्रामर के कवायद और ज़वाबित को समझना, पढ़ने के लिए कुछ किताबें तैयार करना, लोगों को उनकी जुबानें लिखना और पढ़ना सिखाना था और हमारा आखिरी मकसद लोगों को उनकी जुबान में खुदा का कलाम सिखाना था। जी हाँ, सबसे पहले हम उन चीजों की तरफ इशारा करके आगाज करते हैं जो हमने सौती निज़ाम में सीखी थी और फिर उन्हें उसी निज़ाम के तहत लिख लेते हैं। और मुझे याद है वो पहला लफ्ज जो मिला था, दर हकीकत यही वो जगह और खानदान था। ये वही घर तो नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ मैं घर के लिए लफ्ज हासिल करने की कोशिश कर रही थी। बस मैं उस घर को हाथ मारने लगी और मैं अंग्रेजी में कहती रही, तुम जानते हो, घर घर। इन्हें इस बात का इशारा देने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आखिरकार एक शख्स ने कहा, ओ मागा, ओ मागा। तो फिर मैंने अपना पेपर निकाला और घर को सौती निज़ाम में लिखना शुरू कर दिया। ओ मा गा, घर। वाह, क्या आपने देखा? बाबल के बुर्ज के बाद जब दुनिया की तमाम जुबानें, ये सारी कौमें और उनकी तहजीब और सकाफत तख्लीक हुई तो उसके बाद तब से लेकर आज तक इस जुबान को पहले कभी नहीं लिखा गया, लेकिन मैंने अभी अभी इस जुबान का पहला लफ्ज लिखा है। खैर, बाइबल की मुतरजम होते हुए मेरा काम उन लोगों को खुदा का कलाम उनकी जुबान में मुहैया करना था और अब तक मेरी लुगत में उनकी जुबान का एक लफ्ज शामिल हुआ था। ये सब कुछ मेरी समझ से बालातर था, लेकिन यूं इसका आगाज हुआ। आखिरकार हमने हरूफ तहजी का हल ढूंढ लिया। हमें मालूम हुआ कि उनकी जुबान में 6 हरफे इल्लत हैं, A, E, I, O, U,
अब मामूल का हरफ इल्लत है। अब मैं इन्हें बेहतर बनाने के लिए अमली कोशिश कर रही हूँ, अंग्रेजी टाइपराइटर की मदद से नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पास हरफ इल्लत की कमी है। मैं हरफ इल्लत के साथ क्या करने वाली थी? खैर, पहले तो हमारी ट्रेनिंग हमारी मदद करती है, लेकिन फिर मैंने हरफ तहजी आई को टाइपराइटर पर बैक स्पेस के साथ दूसरी मर्तबा इस्तेमाल करने का फैसला किया, और उसके साथ डैश का, और ये प्लस जिस पर नुक्ता होता है जाहिर हुआ, और ये हमारा छठा हरफ इल्लत था। और फिर एक आदमी ने किताबें तैयार करने में हमारी मदद की ताकि हम लोगों को उनकी जुबान में पढ़ना और लिखना सिखा सके। खैर, ये किताबें, मैं इन किताबों को अपने हाथों में उठाकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि ये इस जुबान में लिखी जाने वाली सबसे पहली किताबें थी। ये बहुत मुतासिर कुन बात है। इस पहली किताब का नाम योकोकुआ का पत्ता नंबर 1 है। इस किताब का नाम योकोकुई के लिए पत्ता नंबर 2, योकोकुई के लिए पत्ता नंबर 3, योकोकुवी के लिए पत्ता नंबर 4 है। तो जब आप इन 4 किताबों का मुताला करते हैं, आप इस जुबान को रवानी के साथ लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। ये तमाम किताबें सौती निजाम पर लिखी गई हैं। खैर, मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली क्लास में थी तो मेरे पास एक सुर्ख रंग की किताब थी, और शायद इसीलिए मैंने सबसे पहले इनके लिए सुर्ख रंग का इंतखाब किया। और मुझे याद है मैं पढ़ा करती थी, देखो डिक भाग रहा है, देखो जेन भाग रही है, भागो भागो भागो। हमें भी इन लोगों को सिखाने के लिए इसी तरह का तरीकाकार इस्तेमाल करना था। सादा कहानियों का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन डिक, जेन और स्पॉट द डॉग के बारे में ये कुछ भी नहीं जानते थे। इसीलिए इस बूढ़े आदमी ने इस किस्म की कहानियां लिखने में मेरी मदद की, जो कि इनके मुआशरे में सुनाई जाती थी। और जो कहानियां हमने लिखी उनमें पहली कहानी कुछ यूं थी, देखो इस बड़े मगरमच्छ को, वो देखो बड़ा सा जहरीला सांप, भागो भागो भागो, और ऐसी कहानियां। और इसी तरह हमने शुरू किया, और फिर हमने अपने स्कूल का आगाज किया, और ये हमारे तालीमी प्रोग्राम का आगाज था। वो जुबान को सीखने और इसी की मश्क करने के लिए गांव में चलकर आते थे। वो बूढ़ा आदमी मैकाबोपिया एक तबीब था। उसने मुझे बुलाया और कहा, मार्लेन मार्लेन, और वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और वो अपनी जुबान में मुझसे चंद बातें पूछने लगा। उसने कहा, हर रोज मैं तुम्हें गांव की तरफ जाते हुए देखता हूँ। ये क्या है जो तुम हर रोज इस कांटे के साथ केले के इस पत्ते के ऊपर कंधा करती रहती हो? अब इस गांव में रहते हुए तकरीबन 6 माह हो गए थे, और मैंने सोचा था कि शायद अब तक वो जान गए होंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं आपकी बातों को लिखती हूँ। उसने कहा, क्या मेरी बातें? तुम्हारा मतलब कि वो अल्फाज जो मेरे मुंह से निकलते हैं, तुम उन बातों को केले के उस पत्ते पर लिखती रहती हो, जैसे कि कोई किसी सफेद फार्म आदमी की बातों को लिखता है। उन लोगों के मुताबिक सिर्फ सफेद फार्म आदमी की बातों को कुंदा किया जा सकता था। मैंने कहा, नहीं, इस दुनिया में मौजूद तमाम जुबानें खुदा ही की बनाई हुई हैं, और खुदा ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मैं खुदा की बातों को आपकी अपनी जुबान में मुहैया कर सकूं। मेरा मतलब है, वो इतनी जल्दी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात और हकीकत ये थी कि उनके लिए वाकई हैरान कुन बात थी। मैंने ये मालूम किया कि वो भी खुदा ताला के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और ये भी देखा कि दुनिया में मौजूद तमाम जुबानों में खुदा ताला के लिए कोई ना कोई लफ्ज मौजूद है। क्या ये दिलचस्प नहीं? बहरहाल, इस जुबान में खुदा ताला के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज आदिल कोविवोनम है, जिसका मतलब अजीम बाप और तख्लीक करने वाला है। और जब मैंने उसे बताया कि ये किताब अजीम बाप और पैदा करने वाले के बारे में है, तो वो इस किताब में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। वो उठा और किताब को देखने के लिए करीब आया और अपनी उंगली से किताब पर ज़र्ब लगाता रहा। उसने कहा, तुमने इसके अंदर क्या लिखा है? उसने पूछा, इसमें लिखा क्या है? मैंने कहा, माकाबोपिया, यहाँ लिखा है कारा ओमागा नामे। इसमें मेरी बातें हैं। इसमें तुमने मेरी बातों को कंधा किया है। वो अपनी गंठिया और झुर्रियों से भरी उंगलियों को केले के उस पत्ते के ऊपर रगड़ता रहा, और साथ ही ये भी कहता रहा, ये मेरी बातें हैं, ये मेरी बातें हैं। और उसने उसी वक्त हमें अपनी बेटियों के तौर पर अपनाने का फैसला किया। वो हमारे गांव का बाप बनना चाहता था। वो रोजाना आकर हमें जुबान सिखाना चाहता था। वो एक नहायत साबिर और बाकमाल उस्ताद भी था। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं, और वो समझ नहीं सका कि हमें इतनी देर क्यों लग रही थी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ 6 माह हो चुके हैं और अभी तक तुम जुबान नहीं बोल पा रहे। उसने सारे गांव को इकट्ठा किया। उसने गांव के हर शख्स को गांव के इस इज्तिमा में आने को कहा, और फिर वो हमारे साथ खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या तुम लोगों को पता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? ये हमारी बातों को कंधा कर रही हैं। हमारी बातों में एक सफेद फार्म आदमी की बातों जैसी कुव्वत है। और उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को यहाँ रहते हुए 6 माह हो गए हैं और अभी तक तुम ये जुबान नहीं सीख पा रही। ये बहुत आसान
जुबान है, तुम्हारे जहन कहाँ है? ये एक आसान जुबान है, इसे सीखना मुश्किल नहीं है। उसने कहा दरअसल इस गांव का हर शख्स इस जुबान को बोलता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इस जुबान को बोलते हैं। उसने कहा कि तुम्हारा मसला यह है कि तुम हमारी खुराक इतनी नहीं खाते हो। अगर तुम थोड़ी सी और ज्यादा हमारी खुराक खाओगे तो उससे तुम्हारी जुबान ढीली होगी और तुम दोनों और ज्यादा रवानी से हमारी जुबान बोलने लगोगे। उसने एक मुहिम चलाई और गांव के तमाम लोग हमारे लिए अपने जंगल के उम्दा, लजीज और हैरान कुन सौगात लाए और कुछ हरे पत्तों में लिपटी हुई कुछ चीजें लेकर घर में आ रहे थे। और मैंने उन सालों में सीखा कि जब कोई आपके लिए हरे पत्ते में लपेट कर कोई चीज लाता है तो बहुत मोहतात होकर खोलें। हमें ये सब कुछ करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। और फिर वो मेरे खाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें लाने लगे, जैसे कि उड़ने वाली दीमक जो कि अभी जिंदा थी, और भंवरे के लार्वा जिनको लंबी सीख के ऊपर भूना गया था। आपने देखा होगा जैसे कि कबाब, केकड़े का कबाब और मगरमच्छ का गोश्त और जाने क्या कुछ। लेकिन फिर भी वो लोग वाकई इस बात पर बहुत यकीन करते थे कि उनकी खुराक खाने से हमारा उनकी जुबान को सीखने का अमल तेज हो जाएगा। हम घर में बैठे तर्जुमा कर रहे थे कि अचानक लोगों की हलचल और चिल्लाने की आवाज सुनी और ढोल बजना शुरू हो गए। वो देखो, उस घर में आग लग गई है। हम सब ने तेजी से गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया और ये आग दरिया के उस पार थी। हमने अपनी छोटी किश्तियों को इकट्ठा किया और दरिया की दूसरी तरफ गए और ये वो घर था जिसमें आग लगी हुई थी। अब चूंकि मैंने माजी की कहानियों में ये सुन रखा था कि जब किसी एक घर को आग लगती है तो उसके साथ मौजूद बाकी घर भी आग की लपेट में आ जाते थे, क्योंकि इनके घर साथ साथ और जुड़े हुए थे। और फिर तमाम मसीही लोग एक जगह पर इकट्ठे होने लगे और हर कोई शख्स चिल्ला रहा था और तमाम औरतें मातम कर रही थी। हमारे सीनियर पास्टर जोएल ने हम सबको इकट्ठा किया और उन्होंने हमें एक दूसरे के हाथ थामने के लिए कहा और फिर वो खुदा से फरियाद करने लगे। वो कहने लगे, ए पापा गॉड, तू ताकतवर है, सिर्फ तू ही सबसे ज्यादा जोर आवर है। ए पापा गॉड, ए पापा गॉड, हमारी तमाम चीजें जिसमें हमारे बेलचे, मशीनरी और लोहे की कुल्हाड़ी है, हमारी सब चीजें उन्हीं घरों में है। ए पापा, हमारे पास सब कुछ है, बस इस हवा का रुख बदल दे। अहबाब, तो सब कुछ है, इस तूफानी हवा का रुख मोड़ दे। और वो यही कहता रहा और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उस तूफान का रुख बदलते देखा और वो तूफानी हवा उन घरों से दूसरी सिमत में चली गई। और मैं आपको बताती हूँ कि उस आग से सिर्फ 2 ही घर चले थे। उन्नीस 1970 के शुरू की बात है कि जब मेरी साथी मेरे साथ काम को जारी न रख सकी तो मैं तकरीबन 7 साल तक अकेली थी। मैं जानती थी कि पहला काम जो मुझे करना था, मुझे अपने कुछ तर्जुमानों को मोटर चलाना सिखाना था, अगरचे वो छोटे लड़के ही थे, क्योंकि हर 3 माह के बाद हमें 110 मील का सफर तय करके उस हवाई पट्टी से सामान लाना होता था। ये सब कुछ अकेले करना मेरे बस की बात ना थी और इसके अलावा दरिया को भी मैं सही तरह से नहीं जानती थी। मैं अक्सर रेतले किनारों में फंस जाती और फिर मोटर के मसाइल। बेशक दुनिया में कहीं भी रहने वाले लड़के तेज रफ्तारी में दिलचस्पी रखते हैं और खोखली लकड़ी से बनी हुई कश्ती 1 घंटे में सिर्फ 20 मील का सफर तय करने वाली मोटर बोट को चलाना सब लड़कों के लिए दिलचस्पी का बायस था। मैं 8 लड़कों को ट्रेनिंग दे रही थी और मैं उन्हें बता रही थी कि स्पार्क प्लग को कैसे बदलते हैं और पेट्रोल की नाली को कैसे साफ करते हैं और इस तरह की बहुत सी चीजें। हमारे पास चीजों की फहरिस्त थी और मैंने उनसे कहा कि हम दरिया के पार जाकर उन चीजों को ले आते हैं। इसलिए हमें उस दरिया को पार करने के लिए ईंधन की 4 टैंकियों की जरूरत थी, लेकिन वापसी पर 5 ईंधन की टैंकियों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम मुखालिफ सिमत में चल रहे होंगे। खैर, जब हम कोकाइन नामी गांव से आगे निकले तो हमारी कश्ती की मोटर एकदम से रुक गई और हम एक तरह से पानी के हल्के बहाव में चल रहे थे, जो कि 3 से 5 मील फी घंटा की रफ्तार से होता है। और उस वक्त मच्छर आपके सर पर बादलों की तरह मंडलाने लगते हैं। और उस छोटी सी कश्ती के पिछले हिस्से में अजीब किस्म की अफरा तफरी मची हुई थी और मैंने उनसे कहा कि तुम सब पीछे क्या कर रहे हो? और वो कहने लगे, मैरिलिन, हमारी कश्ती की मोटर खराब हो गई है। मैंने कहा, मोटर खराब हो गई है? क्या तुमने पेट्रोल की नाली को चेक किया है? कहीं वहाँ पर कचरा तो नहीं फंसा हुआ? ओह नहीं, पेट्रोल की नाली बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा, क्या स्पार्क प्लग भी ठीक है? उसे चेक किया? क्या तुमने उसे तब्दील किया था? कहीं वहाँ पर तो कोई खराबी नहीं? स्पार्क प्लग? नहीं, वो भी ठीक है, उसमें कुछ मसला नहीं। मैंने कहा, ओ मेरे खुदाया, और मैं सोच रही हूँ कि अगर हमसे ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि पानी की लहरों के सहारे आहिस्ता आहिस्ता वापस हवाई पट्टी पर चले जाएं, क्योंकि तुम सब लहरों की मुखालिफ सिमत में इस 60 फुट लंबी कश्ती को नहीं चला सकते। और मैं जानती हूँ कि दरिया की उस जगह से वापस उस हवाई पट्टी पर पहुँचने में हमें तकरीबन 4.5 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार न थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैरिलिन, हमारे पास पेट्रोल खत्म हो गया है। मैंने कहा, इसका क्या मतलब कि हमारे पास पेट्रोल खत्म हो गया है? मैंने उनसे पूछा, हमारे पास कितनी टंकियां बाकी हैं? 4।
मैंने कहा, क्या 4? तुम्हें पता है कि दरिया में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 5 टंकियां पेट्रोल की होनी चाहिए थी, और मैं उस वक्त वाकई बहुत ज्यादा नाखुश थी। तुम लोगों ने हिदायत पर सही तौर पर अमल क्यों नहीं किया? हकीकत में हम सब का यहाँ आने का मकसद भी यही था कि तुम लोगों को इन सब बातों की तरबियत दी जाए। मुझे गुस्सा आ रहा था, अब हम क्या करें? और मैं बोलती जा रही थी, और आपको पता है कि ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब गुस्सा आता है तो आप उस बोली को और भी ज्यादा रवानी से बोलते हैं। अल्फाज मेरे मुंह से पानी की तरह बह रहे थे, और मुझे इतना भी याद नहीं कि मैंने उन लड़कों से क्या कहा। बहरहाल ये नौजवान तर्जुमान अभी तक ना तो उस बोली को बोलना जानते थे और ना ही पढ़ना। वो सब मसीह को कबूल कर चुके थे और यीशु को अपनी जिंदगी में अपनाया था। उन्होंने कहा, मैरिलिन, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप बस चुप करके आराम से उधर बैठ जाएं। मैंने कहा, ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन अब बताओ कि हम करेंगे क्या? और वो कहने लगे कि हम पापा से पूछेंगे, हम खुदा बाप से पूछेंगे, वही हमें राह दिखाएगा। मैंने कहा, तुम खुदा बाप से पूछोगे? तुम दुआ करने लगे हो? ओ, ये वाकई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो पता चले कि हम किस बात के लिए खुदा से दुआ करने वाले हैं। वो बोले, मैरिलिन, देखो, हम पैदाइश की किताब और कुछ दूसरी किताबों का तर्जुमा करते रहे हैं, और बाइबल इस बात की शहादत देती है, और खुदा के कलाम में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हम कहीं भी हो, खुदा बाप हर जगह देख रहा है। वो जानता है कि हम मुसीबत में हैं, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, और वो इस वक्त भी जानता है कि दरिया में सफर करते हुए हमारा पेट्रोल खत्म हो गया है। और वो 8 नौजवान लड़के उन 4 खाली टंकियों के गिर्द जमा हो गए और अपने हाथ उन खाली टैंकियों के ऊपर और इंजन के ऊपर रखकर ये दुआ करने लगे, ऐ बाप, हम सब इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में हैं, और बाप, मैरिलिन के साथ हम और भी ज्यादा मुश्किल में हैं। और ये बात वाकई दुरुस्त थी। ऐ खुदा बाप, तूने ही आसमान में अनगिनत सितारों को पैदा किया, और तू ही सूरज, चांद, बादलों और बिजली का खालिक है। हर वो चीज जो ऊपर आसमान में है, कुछ भी कभी भी तेरी मर्जी के बगैर नीचे नहीं गिरी है। तो वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर खुदा है। ऐ बाप, तू हमारे लिए काफी है, हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं। और आप हैरान होंगे कि जैसे ही उन लड़कों ने अपनी दुआ खत्म की, उन्होंने उस मोटर की रस्सी खींची और इंजन फौरन स्टार्ट हो गया, और हम पेट्रोल की एक बूंद के बगैर 1 घंटे का सफर 45 मिनट में तय करते रहे। जब मैंने इस इलाके में मौजूद जंगल और दूर दूर तक फैले हुए दलदली इलाके को देखा, तो मालूम हुआ कि वहाँ 700 मुख्तलिफ जुबानें और वाकई हजारों बोलने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। और मैं हैरान थी कि ये कैसे होता है। दुनिया में मौजूद किसी भी दूसरे मजहब से कहीं ज्यादा मसीहत कैसे इतनी तेजी से फैल रही है। 23 साल तक उन लोगों में खिदमत करते हुए मैंने ये महसूस किया कि खुदा उन लोगों से प्यार करता है। खुदा ने उन्हें तख्लीक किया और तमाम लोगों के दिलों की तख्तियों पर खुदा के अहकाम लिखे हुए थे। उन तमाम देहातों में मौजूद हर फर्द बशर और दुनिया में मौजूद वो तमाम जुबानें खुदा ने अपने कलाम के लिए तैयार की थी, ताकि वो ये देख सके कि हम उसके कलाम को रद्द करते हैं या कबूल करते हैं। और इसलिए यीशु ने भी हमें यही सिखाया था कि तमाम दुनिया में जाओ और इंजील की मुनादी करो। उसने हमें करने को नामुमकिन काम नहीं सौंपा था। इसलिए खुदा मुझ जैसी सादा सी लड़की की तरह किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वही इसे काबिल अमल बनाता है। जब हम ग्रामर के कवायद व ज़वाबत और हरूफ तहज्जी को समझ लेते हैं और उनकी तर्ज ज़िंदगी और तहजीब व सकाफत से बखूबी वाकिफ हो जाते हैं, तो फिर हम तर्जुमे का काम करना शुरू करते हैं। खैर, इस दर्जे तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 4 से 5 साल लगते हैं, और हम पैदाइश से शुरू करते हैं, तख्लीक की कहानी से, जो कि बुनियाद है। 4 कबीलों की तख्लीक कायनात से मुतलिक अपनी अपनी कहानियां थी। पहला ग्रोह मगरमच्छ से, दूसरा ग्रोह अजदहा से, तीसरा जंगली कासवेरी परिंदे से, और चौथा कबीला जंगली सुअर से तख्लीक हुआ। वो इन चारों तख्लीक कायनात की कहानियों के हर हिस्से को बड़ी आसानी से बयान कर सकते थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि मगरमच्छ कहाँ से आया था और फिर अजदहा कहाँ से आया था। खैर, हमारे आबाओ अजदाद ने हमें बताया था कि इब्तदा में मगरमच्छ था, इब्तदा में अजदहा था। मैंने कहा नहीं। मैंने उन्हें बताया कि इब्तदा में खालिक अजीम खुदा बाप था। खैर, वो टीम जो खुदा ने मुझे दी थी वाकई बहुत दिलचस्प थी। वहाँ पर 14 छोटे लड़के थे। वो 5, 6 और 7 साल के थे और नंगे ही घूमते रहते थे, और वो मेरे घर भी आते जाते रहते थे, और उन्हें लगता था कि हम बहुत अजीब हैं। शुरू में तो वो हमारी सफेद जिल्द से बहुत डरते थे, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उन्होंने मुझे अपनी जुबान सिखाना शुरू किया। वो लड़के भी उस आदमी के साथ जो कि एक तबीब था और जिसकी नाक में एक हड्डी और कमर के इर्द गिर्द कद्दू और अंगूर की बेल लिपटी होती थी, वो भी हमारी टीम में शामिल होना चाहता था, और वो सब तर्जुमा करने में मेरी मदद करने लगे।
और इन 14 छोटे लड़कों के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो 23 साल तक मेरे साथ रहे, और जब तक हमने इस किताब को मुकम्मल न कर लिया उन्होंने मेरा साथ दिया। और एक खास चीज जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बात करते थे, यहाँ तक कि आज भी, इस सारे वक्त के दौरान इन 14 लड़कों में से ना तो कोई शदीद बीमार हुआ और ना ही कोई मरा। ये वाकई हैरान कुन बात है, क्योंकि जब मैं इस गांव में गई थी तो जिंदगी की तवक्को सिर्फ 30 से 35 साल की उम्र के दरमियान तक की जाती थी। शीरखार बच्चों की शराय अमवात 90% या इससे भी ज्यादा थी। लेकिन ये लड़के आज भी इस गांव में मौजूद हैं। इनमें से हर कोई अब शादीशुदा है और उनके बच्चे हैं और एक खूबसूरत खानदान है, और इनमें से हर कोई हमारे चर्च में रहनुमा है और हमारे गिरजाओं में यस्सु के मजबूत गवाह हैं। खैर, आप जरा तस्वुर करें, मैं इन छोटे लड़कों के साथ अपने घर की छोटी सी शतीर से बनी हुई छत के नीचे मौजूद हूँ, जिसका फर्श दरख्तों की छाल से बना हुआ है। वो 14 लड़के नीचे फर्श पर बैठे हैं और वो बूढ़ा आदमी, और हम सब शुरू से शुरुआत करते हैं। खैर, वो सब तख्लीकी कायनात की कहानी को लेकर बहुत ज्यादा पुरजोश थे कि खुदा ने सूरज, चांद, सितारे और पानी में रहने वाले जानदारों को, मछलियों को और हर एक चीज को पैदा किया। और वो हर रोज मुझसे पूछते थे, हमें बताओ कि खुदा बाप ने इंसान को कैसे तख्लीक किया। मैंने बताया कि खुदा बाप ने पहले दुनिया को तख्लीक किया। लेकिन वो हर रोज मुझसे पूछते, मेरिलिन, क्या आज तुम हमें बताओगी कि खुदा बाप ने हमें कैसे पैदा किया। मैं उन्हें कहती थी, नहीं, आज ये दिन नहीं है, ये दूसरे बाब में है। खैर, वो दूसरे बाप के बारे में कुछ नहीं जानते थे। खैर, आखिरकार वो दिन भी आ गया और मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, आज वो दिन है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि खुदा बाप ने कैसे इंसान को पैदा किया। और मैं कलाम में से पढ़कर उनको कुछ यूं बताने लगी। खुदा बाप ने इंसान को जमीन की मट्टी से पैदा किया, जमीन से, और फिर खुदा बाप ने इस मट्टी के पुतले में जिंदगी का दम फूंका। और वो अपनी स्याह आंखों के साथ मुझे घूरने लगे और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। और फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या क्या वाकई ये सच है। मैंने कहा, हाँ, ये सच है। और उसने कहा, ओ मेरे खुदाया। वो इस कहानी पर यकीन नहीं कर रहे थे और उन्होंने आपस में बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरिलिन, हम हमेशा ये सोच रहे हैं कि हम इस जगह से आए हैं। हम इस सोचकर हमेशा हैरान होते हैं कि क्या हम अज़दहा से आए हैं। फिर हमने अपनी बात जारी रखी और फिर हमें गुनाह के लिए एक लफ्ज मिला, लेकिन उस लफ्ज को ढूंढना इतना आसान नहीं। यानी आप अमली तौर पर समझते और बयान करते हैं, लेकिन हमारे पास गुनाह के लिए लफ्ज डिगोराइको भी ये है। इंग्लिश में इसका सही मतलब बयान करना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं। मतलब है। और तुम्हारे नजदीक बुरी चीज क्या है?